ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, मैं ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਲਖ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਸੈਕਟਰ 26 ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਥਾਂ। ਮਲੋਇਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਅਤੇ ਪਾਵਰ यूनियन समेत 6 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ये ड्राइव चल रही है जी आज अपना तहसीलदार की अगुवाई में, तो कर रहे हैं, सारा क्लियर करके जाएंगे आज। हाँ, अब सिक्योरिटी फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर ताकि ना बने आगे। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ये ड्राइव चल रही है जी आज अपना तहसीलदार की अगुवाई में, तो कर रहे हैं, सारा क्लियर करके जाएंगे आज। हाँ, अब सिक्योरिटी फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर, हाँ, ताकि ना बने आगे। ਦਰਅਸਲ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਤੀਕ੍ਰਮਣ ਹਟਾਓ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਮਲੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਲੋਇਆ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਲੋਇਆ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਾ ਦੁਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ नहीं कि ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਣ। हम भी ये कहना चाहते हैं कि आदमी तो 5 साल हो गए मंजे पे धरा है, उसका लात टूट गया। मेरी प्राइवेट ड्यूटी थी वो भी छूट गई, 2 महीना तो घर बैठी हूँ, तो बताओ हम कहाँ से किस्त भरेंगे? हाँ, मोदी ने दिया था, हम कोई क्या कर दिया, दान कर दिया का कोई है जो 3000 रुपया किस्त दे रहे हैं और 5000 बिजली का बिल आया हमारा। जी मोदी जी कह रहे थे फ्री मकान मिलेंगे, अभी तक कोई मकान फ्री नहीं मिले। हमारे नोटिस भी आए हुए हैं, कह रहे खाली करो मकान, किस्त जमा करो। कहाँ से करे, गरीब आदमी हम, ना बच्चों की पढ़ाई होती, ना खाने को रोटी को खाना मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, क्या करे।
नोटिस जो आई है तो उसके बारे में ये कह रहा उसी में मकान 800 में दिया है, उसी में मकान हम लोगों को 3000 में दिया। पानी अलग है, बिजली अलग है, और कमाने वाला एक है, तो कहाँ से आदमी खर्चा चलाएगा, कहाँ से ये नोटिसों का भरपाई करेगा। आना भाई, जब कोरोना काल में जब हम परेशान रहे, हमारे पास पैसा नहीं था और ये 3000 की किस्त तो भाई हम कहाँ से भर पाएँ। सब हमें भाई 800 की किस्त भरो, नहीं ना स्टॉक देंगे हम, तो हमें नहीं ज़्यादा चाहिए, हम तो 3000 है भाई सबके, तो हमारी बस की बात नहीं है। 3000 सर काम में है नहीं, कहाँ से भरें पैसे, ना तो कमाने हैं ना कुछ है, ना नौकरी नहीं है। हम नहीं भरेंगे तो आपका ताला लग जाएगा। ताला लग जाएगा, बताओ कहाँ से भरेंगे और कहाँ जाएंगे। ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। मैं सबसे पहले तो सब बहनों को महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ। और बाकी मैडम जी ने जो बात थी सारी इनको समझा दी है। बाकी हम कांग्रेस जितनी भी है इन लोगों के साथ है। इस मौके चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की प्रधान दीपा दुबे ने मोदी सरकार ते निशाना साधिया ते धक्केशाही का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से इन्हां सारियां महिलावां नूं वड्डे नोटिस थमा दिते गए ने, जो कि सरासर गलत है। इनके जो नोटिसेज हैं, जो टाइम आज अखबार में पढ़ा 23 तारीख तक का इनको टाइम दिया, उसके बाद कहा कि आपके मकान खाली करवा दिए जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर यही कार्यक्रम ऐसे ही धक्काशाही चलती रही तो महिला कांग्रेस इन लोगों के साथ, चंडीगढ़ महिला कांग्रेस इन लोगों के साथ सब मिलकर धरना प्रदर्शन करेगी और मोदी जी की जो असली औकात है, जो झूठ बोलने के फल्ले हैं, उन सब के साथ उनके सबकी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये मैं आज इन लोगों को अपनी टीम की तरफ से आश्वासन देना चाहती हूँ कि हम बहनों आप लोगों के साथ हैं, आपकी हर समस्या में आपके साथ खड़े हैं और इससे भी आपका छुटकारा जल्द ही दिलवाएंगे। कोरोना काल दे विच होए नुकसान दी मार चल रहे ਇਹ गरीब लोग हुण हज़ारां रुपए दी पेंडिंग पईयां किश्तां देण दे विच असमर्थ ने, ते जिस दे चलदे ਇਹ महिलावां नोटिस दा विरोध कर रਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। उधर यूटी पावर यूनियन समेत 6 जथेबंदियां ने एडवाइजर ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। चंडीगढ़ के कर्मचारियों की 6 मेजर फेडरेशनें हैं, जिनमें फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉयमेंट वर्कर चंडीगढ़, चंडीगढ़ यूटी सबऑर्डिनेट सर्विस फेडरेशन, जॉइंट एक्शन कमेटी यूटी और एमसी, ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ और यूटीएसएस फेडरेशन की अगुवाई में जो हमारी कर्मचारियों की जत्थेबंदियाँ चल रही है और हमने संयुक्त कर्मचारी मोर्चा बनाया हुआ है। उस मोर्चे की तरफ से हमने 3-4 दिन पहले एडवाइजर साहब को रिक्वेस्ट लिखी थी कि जो चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों के साथ जो आगे सरकार हड़ताल को वापस लेने के बाद जो फैसला होने के बाद अगली जो कार्रवाई कर रही है, जिनमें कुछ जेई सस्पेंस किए गए हैं कर्मचारियों को, कुछ जो आउट कर्मचारी है उनको नौकरी से निकाला गया है और 100 का नोटिस इशू करके जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके अगेंस्ट जो है उसको रद्द कराने के लिए मामले में हमने जो लेटर लिखी है उस संबंध में हम कल एडवाइजर साहब को मिल के आए हैं कि सरकार के साथ बातचीत के बाद अगर हड़ताल वापस हुई है तो सरकार ये इस तरह की जो कार्रवाई कर रही है इस तरह की कार्रवाई को बंद करे और कर्मचारियों के साथ जो सद्भावनापूर्ण माहौल में बातचीत हुई है उस बातचीत के माहौल को आगे बढ़ाए। मेन हमने यही इशू लिए हैं अपने, जो मैंने आपको जिक्र किया है, जो केस बनाए हैं उनको वापस लिया जाए, सस्पेंस जो किए हैं साथी उनको वो ऑर्डर जो है वो रिवोक किए जाएँ और जो 100 का नोटिस इशू किए हैं उनके ऊपर जो है वो सारी जो है वो टोटली तौर पर एक तरफा जो है कार्रवाई ना की जाए और जो सद्भावनापूर्ण माहौल में जो बातचीत हुई है उस बातचीत को आगे बढ़ा के ये माहौल जो है उसको सद्भावनापूर्ण ही बनाया रखा जाए। इस मामले को लेकर हमने एडवाइजर साहब को जो है विनती करके आए हैं। और दूसरी तरफ जो चंडीगढ़ के कर्मचारियों के बाकी मुद्दे भी हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का पूरे चंडीगढ़ में हर एक डिपार्टमेंट जो इशू बहुत ही काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उसको रोकने की मांग की है। जिन कर्मचारियों की मौतें होंगी उनके परिवारों को नौकरी देने के लिए, पोस्टें जो खाली पड़ी उनको भरने के लिए हम उनको विनती करके आए हैं कि इन सारे मुद्दों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर पर एडवाइजर साहब को हम रिक्वेस्ट करके आए हैं
कि सारे डिपार्टमेंट के हेड्स को बुला के एक लंबी जो है वो मीटिंग की जाए, ताकि आम जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के अलग डिपार्टमेंट में जो मुद्दे पेंडिंग हैं उन मुद्दों का जो हल निकाला जा सके। उधर क्रिकेट लेजेंड कपिल देव ने खਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਕਸਰ ਭੱਜ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦਾ। ਮੌਕਾ ਸੀ ਅੰਡਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੇਡ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਰਾਜੰਗਤ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਹਰਨੂਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਪਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, लेकिन हमेशा याद रखना कि देश के लिए खेलना है। कि जब मैं आपकी उम्र का था, पहली इंटरव्यू एक मीडिया वाला आया दिल्ली में, परफॉर्मेंस थी, he said who's कपिल देव, बड़ी मुश्किल से निकला मी, तो he said I want to take your interview, तो मैं क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ, उधर से मैं गोली हो गया। सो ये चीज़ें आज सीखोगे तो कल अगर आप इंडिया के कैप्टन बने या कुछ हुआ तो आप रोक से बोल सकते हैं। जीतने का कितना मिला था अंडर 19 40 लाख, ये कितने कुछ 40 लाख ना, अगर कल ना मिले तो भी खेलोगे ना। यही सबसे ज़्यादा सुनना है, आवाज़ नहीं निकल रही, आवाज़ नहीं निकल रही, वो निकालो कि कल पैसे मिले ना मिले देश के लिए खेलना है। बिल्कुल आजकल के बच्चे IPL का देखते हैं, घर नहीं चाहिए, BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए। आपका भी कोई ऐसा प्लान तो नहीं है? ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯੂਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ 19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सोमवार ਨੂੰ ਆਪਣੇ घर परते। तैयारी तो सर हमेशा ही चलती है, अब तक तैयारी कर रहे थे कि जब मौका मिले तब परफॉर्म करना है, और ये तो था ही कि सर जब मौका मिलेगा तो टीम के लिए जितना अच्छा हो सके उतना करना है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, होम टीम ने लिया है तो उस बात की ज़्यादा खुशी है कि पंजाब ने ले लिया। अभी तो जो आगे जैसे IPL के मैचेस हैं तो उन पर ही फोकस है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहले IPL है तो उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, उसके बाद जो आएगा फिर तब देखते हैं। मोटिवेशन की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं क्योंकि गेम खेलनी काफ़ी पसंद है तो बस इंजॉय करता हूँ। नहीं प्रेशर मेरे को उस चीज़ का तो ना कभी फैमिली ने डाला ना कुछ था। हाँ मतलब ऑनर की बात है कि मैं उनका पोता हूँ, पर इससे ज़्यादा ये मेरी अपनी स्टोरी है तो फिर मैं उसका प्रेशर नहीं लेता कि उनकी लेगेसी आगे बढ़ानी है। सपोर्ट सर काफ़ी सपोर्ट था शुरू से ही, जब से ही मैं यहाँ चंडीगढ़ में एफिलिएशन मिली तो पहले साल से ही काफ़ी सपोर्ट करा। इन्होंने काफ़ी केयर करते हैं हर प्लेयर की, अपने कोचेस स्टाफ जितने भी हैं सब काफ़ी अच्छे हैं, तो काफ़ी सपोर्ट रहा। इनकी सपोर्ट के बिना तो आगे कैसे जाता है। मैसेज तो सर यही है कि बस एंजॉय करते रहो और अपना बेस्ट देते रहो, यही मैसेज है मेरा। वो सर काफ़ी सीनियर हैं, ऑलमोस्ट सारे ही, मेरे से तो सभी सीनियर रहेंगे और सब अपनी अपनी कंट्रीज़ से जो बाहर के प्लेयर है वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उनके साथ खेलने में, उनको बॉल डालने में, तो काफ़ी वही आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न फ्रॉम देम। सर एक्चुअली काफ़ी मतलब जैसे वर्ल्ड कप से पहले जब हमने मतलब जब प्रैक्टिस मैच वगैरह हुए थे तो मतलब जोन मैचेस जो हुए थे वो एक काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला हमको मैचेस का। जैसे वनडे मैचेस खेले तो उससे मतलब चंडीगढ़ ने काफ़ी हेल्प किया, जैसे स्टेट मैचेस में हमने रन बनाए तो उससे काफ़ी अच्छा हेल्प मिला, तो काफ़ी योगदान है UTC का। सर मतलब काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि मतलब हम काफ़ी फॉर्चुनेट इनफ हैं कि मतलब UTC हमको ऐसे इनिशिएटिव लिया उन्होंने और हमको ऐसे वो कर रहे हैं, तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है मेरी और मेरी फैमिली के लिए भी। सर ये है कि मतलब कभी अपने आप को चीट मत करो, एंड मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, मतलब ये है कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब करो, क्योंकि ये मतलब इतने लोग खेलते हैं चंडीगढ़ से तो सबको ये मौका नहीं मिलता। तो आई जस्ट वांट टू से कि मतलब जितने को भी मौका मिलेगा तो ट्राई करके अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, बाकी इतना आगे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस 1 मैच एट अ टाइम एंड बस नॉर्मल लेके जाना, इतना कुछ आगे सोचना नहीं। एक्सपीरियंस सर मैं कह सकता हूँ कि मतलब जैसे मैं अपने स्टेट के पहले 3 मैच खेला तो मेरे से रन नहीं हुए थे,
तो मतलब ये है कि मेरे मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर से बात हुई थी, तो उनने मेरे को थोड़ा समझाया कि ऐसे हो सकता है एंड ऐसे होगा। तो उन्होंने काफ़ी मेरे को हेल्प किया कि मेरे को ये है कि मतलब जिनसे भी आपने बैटिंग बारे बात वगैरह करते हो तो आप उनसे कर लिया करो, तो मतलब अच्छा रहता है वो सारा कुछ। सर अभी तो मतलब इतने आगे के लिए मैं नहीं सोचता, क्योंकि अभी अंडर 25 आ रही है, तो मैं मतलब टूर्नामेंट में मोस्टली ज़्यादा फोकस करता हूँ, जो भी आगे टूर्नामेंट आता है। तो अभी इतना मैं आगे नहीं सोच रहा, तो सिर्फ अभी अंडर 25 के लिए फोकस कर रहा हूँ। सर मेरे को लगता है कि मतलब जैसे मैं सीनियर क्रिकेट खेला हूँ, तो मेरे लिए शायद थोड़ा ईजी हो सकता है 25 के लिए, क्योंकि उधर मैच्योरिटी लेवल अलग होता है एंड यहाँ यंग ब्लड होगा एंड अच्छी इंटेंसिटी हो सकती है यहाँ पर। बट मेरे को लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं करूँगा। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ UTCA ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਕੇਵਲ BCCI ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ICC ਦੇ ਵਧੀਆ ਆਯੋਜਨ ਅੰਡਰ 19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। देखो 40 साल से चंडीगढ़ की जो क्रिकेट एसोसिएशन थी वो कोशिश कर रही थी कि हमारी BCCI के साथ एफिलिएशन हो जाए, लेकिन शायद वो सौभाग्य मुझे प्राप्त होना था जो 2019 में BCCI ने अपनी टीम भेजी, क्योंकि हमने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस था उसके अंदर मैं अप्लाई करके उसमें पार्टी बन गया UTCA की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद BCCI ने टीम भेजी। उन्होंने जब सारा यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा तो उन्होंने इमीडिएटली रिकमेंड किया कि चंडीगढ़ को एफिलिएशन दी जाए, और इस एफिलिएशन के माध्यम से जहाँ पे लोगों के लिए रास्ता खुला, वहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा तो चंडीगढ़ के क्रिकेटर्स का हुआ, स्पोर्ट्स जो अथॉरिटीज़ का हुआ, कि यहाँ से सैकड़ों बच्चों को आगे बढ़ के खेलने का मौका मिल गया। इसमें जो पहला लेवल जो आया था 19-20 में, हमने 11 के 11 फॉर्मेट्स के अंदर हमारी टीम्स गई थी, जिसमें 3 टीम्स तो हमारी नॉकआउट स्टेज पे पहुंची, क्योंकि पहले साल उनको प्लेट ग्रुप में रखा जाता है। हम सारे के सारे लेवल में अब एलीट ग्रुप में आ गए, और दूसरा एक टीम हमारी सेमीफाइनल तक पहुंची। और पूरे देश के अंदर सब एसोसिएशंस ने इस चीज़ को सराहा कि चंडीगढ़ ने अपनी पहली पहचान में ही इस लेवल तक पहुंच गई है। लेकिन एक और बड़ी पहचान हमारे लिए इंतज़ार कर रही थी, वो जो ये थी कि जो हमारे अंडर 19 के जो हमारे प्लेयर्स थे, वो उनकी अच्छी जो है पिछले साल के अंदर गेम्स हुई, उसके साथ ही जब उनको मौका मिला इसके अंदर चैलेंजर कप में खेलने का, तो हमारे 2 प्लेयर उसके लिए सिलेक्ट हुए, हरनूर पन्नू और उसके साथ राजंगत बावा, और वो उसमें खेलने के लिए गए तो उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छी हुई। फिर ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई, जो एशिया कप के लिए जो ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई उसके अंदर उन्होंने उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। तो फाइनली इन दोनों प्लेयर्स को जो चंडीगढ़ के हैं उनको देश की टीम में आने का मौका मिला। तो ICC ने जो अंडर 19 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में रखा हुआ था, वहाँ पे ये दोनों प्लेयर्स इंडिया की टीम में से सारे मैच। ਬਾਵਾ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 252 ਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਵਿਕਟ ਵੀ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 35 ਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰਨੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸਾਬਿਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 141 ਰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। रुख मौसम का कर लेने तो लगातार गर्मी है जो वधदी जा रही है, यानी कि तापमान है जिहड़ा वो भी उपर उठता जा रहा है, पारा दिन ब दिन वधदा ही जा रहा है। अज के जो तापमान की गल की जाए तो अज वध तापमान 28.0 डिग्री सैल्सियस तो घट्टो घट्ट तापमान 13.4 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। तो अज इस बुलेटिन के बस इन्ना ही, फिर होगी मुलाकात। सत श्री अकाल।